you, sir, Dr. Shama ma'am, Dr. Dharmik ma'am, for always inviting me and for always trusting me to bring something new in my packet, in my bag, and to share the same knowledge with the others. So I welcome all the participants in this new morning with a new session. I hope English and Hindi will do for us. Yes, Yeah, ma'am. can I Yes. use English and Hindi both? Yes, madam. Mixed language. Yes. Okay. And right now, looking into the list of the participant, I can see that few of the participants to whom I am so much acquainted with, like Dr. Girish Katkar, sir, from Taiwade College. So, with due respect, good morning to you, sir. Yes, and many more are there. So, let us see and begin the session. All right. So, here I go. I'm sharing my screen. PT ma'am, please let me know my screen is shareable. Yes, ma'am, please. Yeah, is my screen shareable, Preeti ma'am? Yes, it is visible. Yeah. So I am no one to teach anything to you. We all have our unique individual qualities to get ourselves trained. बट यस मैं आपके साथ सिर्फ मेरा जो नॉलेज है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट ड्यू हम्बलनेस आई विल शेयर दैट विथ यू सो द वेरी फर्स्ट टूल विच वी आर गोइंग टू सी इज टेस्ट मोज एक ऐसी वेब एप्लीकेशन बेस्ड साइट है जिसमें आप फ्री क्वेश्चंस बना सकते हैं और बच्चों को असेसमेंट दे सकते हैं एंड दैट तो वहीं का वहीं पे ही आप इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं जैसे हम अब तक गूगल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं गूगल फॉर्म को यूज कर रहे हैं इन मेकिंग अवर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज और क्रिएटिंग अवर असाइनमेंट्स बट यस नाउ टू सम एक्सटेंट अगर हमें कोई फ्री सॉफ्टवेयर या हमें फ्री वेब एप्लीकेशन साइट यूज करनी है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकें विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन one correct answer, two correct answer, or let us say true or false dictomous questions, or let us say match the pair, or any sort of question combinations you want. So we are having one important tool which is known as टेस्टमोस. टेस्टमोस का बेसिक पर्पस यही है कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बच्चों की आपको टेस्ट लेनी है तो आप ऑन द स्पॉट टेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं एंड बच्चों को आप एक्सेस दे सकते हैं बाय यूजिंग सम पास कोड सम पासवर्ड एटसेट्रा एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स they could attempt it. So here we go directly live हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगी तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टेप्स को नोट डाउन करना है देन ऑल्सो इट इज वेल एंड गुड अदरवाइज रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज शेयर्ड विथ यू बाय द HRDC centers. Yes. So here I go. The very first step what we will do is we'll go to Google search engine. सबसे पहले हम Google search engine में जाएंगे. I hope I am audible, Preeti ma'am. Just to confirm it. Yes, ma'am. या सो सबसे पहली स्टेप है कि हम गूगल सर्च इंजन में जाएंगे सेकेंड स्टेप इज कि हमें यहाँ पे टेस्ट मोस टाइप करना है वी हैव टू टाइप टेस्ट मोस now here we can see there is one side which is known as टेस्टमोस powerful but simple test generator. If you want to import questions from other quizzes, टेस्टमोस will help you. टेस्टमोस is very simple test generator. टेस्ट को जनरेट करना है और उसको पब्लिश करना है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट उसको विद इन टाइम लिमिट में आपको सबमिट करे then we can make use of this one innovative tool that is known as टेस्टमोस. So what I will do is second step is I'll click on this. So the first step I have searched this particular web-based application. Second step is I'll click on it and I'll start it interface. अब आप अभी इसका इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप जो परफॉर्म करनी है दैट इज यू हैव टू क्लिक ऑन बिल्ड अ टेस्ट. सो थर्ड स्टेप इज यू हैव टू क्लिक ऑन बिल्ड अ टेस्ट. Now the moment you click on build a test, here it is asking you कि आपके टेस्ट का नाम क्या है. क्या आपका टेस्ट चैप्टर 1 पे है, चैप्टर 2 पे है और लेट अस से किसी टॉपिक पे है. तो आई एम राइटिंग हियर चैप्टर 1 टेस्ट एंड इट्स टॉपिक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. Since I'm an economics teacher, so I'll give you just a demo of the economics subject only. That economics subject का मैं यहाँ पे आपके सामने as a sample, as an example, as a demonstration show करने वाली हूँ.
नाउ हम लोग यहाँ पे एडमिन का काम कर रहे हैं. एडमिन, इट मीन्स ऑथोरिटी लाइज विथ अस विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ पेपर as well as checking of paper. The student is not having any privilege for this particular password. But yes, जब हम स्टूडेंट को ये टेस्ट पब्लिश करेंगे तब उनको हम एक अलग से पासवर्ड देंगे. तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है एंड पासवर्ड लिखना है जिसको मैं एक्सेस कर सकूं जब चाहे. तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना जो भी दिया है आप अपना अपने हिसाब से दे सकते हैं. यू कैन यूज कैरेक्टर्स, you can use numbers or any other special symbols also. So now next step is you have to click on create test. तो सबसे पहली स्टेप थी हम गूगल सर्च इंजन में गए, हमने वहां पे टाइप किया टेस्ट मोस. सेकेंड स्टेप थी हम टेस्ट मोस साइट पे आ गए, वहां पे हमने थर्ड सेकेंड स्टेप जो किया दैट इज व्हाट दी, हमने यहाँ पे बिल्ड टेस्ट पे क्लिक किया. सो बिल्ड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे टेस्ट का नाम दिया और पासवर्ड दिया. प्रीति मैम, आई गेस द रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड और नॉट? It is in process, ma'am. All right. So what we will do is we will click on create test. Now जैसे ही आप create test बटन पे क्लिक कर लेते हैं, what you can see is on the left hand side a dashboard is being shown and the same things are being given in the center also. So you may either go, यहाँ से भी आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं या वन बाय वन ये सारे स्टेप्स आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो हम सेंटर से ही स्टेप्स को फॉलो भी कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड के डैशबोर्ड से भी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, चॉइस इज अप टू यू. सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहली स्टेप अब यहाँ पे टेस्ट को जनरेट करने की है कि मुझे टेस्ट की सेटिंग्स करनी पड़ेगी. टेस्ट की सेटिंग इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन लाइन, if I want to give any objective I can give, if I want to give any conclusion mark I can give, if I want to add how many number of times the student should appear my exam or how it, right. So this takes place under the head editing. हम यहाँ एडजस्ट सेटिंग करेंगे. This Rinki will be the madam, step your number A or hello. B, the first step for creating any test. Yes, ma'am. Your Yes, ma'am. audio is breaking in between. Participants, आपको भी थोड़ा ब्रेकिंग सुनाई दे रहा है कि इज इट ओके? हाँ, ब्रेक हो रहा है मैम आवाज. ब्रेक हो रहा है ना. तो रिंकी मैडम एक काम करिए, आप वीडियो ऑफ रखिए सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी वॉइस ब्रेकिंग. तो फिर Yes, अपन yes. करके देखते हैं अगर वैसा होता All है. right. All right. Okay. So now my हेलो. yes, ma'am. Am I audible now? नाउ इट इज ओके मैम. ओके. सो टेस्ट नेम जो आपने पहले दिया था वही नाम यहाँ पे आया है, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन में आप अपने टेस्ट को लेके जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ कि ये टेस्ट जो है ये कोर्स ऑब्जेक्टिव 1 के ऊपर डिपेंड करता है. सो आई एम राइटिंग हियर दिस टेस्ट is based on course objective 1. All right. Test is compulsory for all. Maximum time limit is, let us say, 20 minutes. Okay. So if you are giving for 20 minutes, you can give all the instructions. आप यहाँ पे introductory section में लिख सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो sentences मैंने लिखे हैं आप भी वही लिखे. आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि this test is based on particular topic and in this test you have to solve all the questions carry equal marks. Whatever introduction is to be displayed before the test आप उसको top of the test पे display कर सकते हैं, या आपको instructions लिखने हैं आप instruction लिख सकते हैं. Whatever text you want to display you can display. Now second point is color scheme. Now this is the theme
जो आप चूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। जो भी आपको चूज करनी है थीम, इट्स अप टू यू, इट लाइज विथ यू। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्वेश्चंस की सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए। क्या सभी क्वेश्चंस एक ही पेज पे होने चाहिए? बट आई सजेस्ट वन थिंग कि क्वेश्चंस पर पेज पे होने चाहिए। इट मींस एट अ टाइम स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करे, उसे सबमिट करे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो जंप ऑन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शो वन क्वेश्चन पर पेज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम शो वन क्वेश्चन पर पेज पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है अलाउ द स्टूडेंट टू जंप अराउंड टू डिफरेंट क्वेश्चन इन द टेक्स्ट। मतलब टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पे स्टूडेंट जंप करे, रैंडमली करे। अगर आप ये सेटिंग ऑन रखना चाहते हैं तो अगेन इट इज अप टू यू, बट व्हाट इज रिकमेंडेड इज कि आप स्टूडेंट्स को अलाउ कीजिए कि पहले वो पहले क्वेश्चन का आंसर दे दे, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप ऑन हो। लाइक जैसे हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उसके बाद हर क्वेश्चन को आंसर देने पर स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्या उसको करेक्ट आंसर आप दिखाना चाहते हैं? क्या आप स्टूडेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अगर आपने किसी क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया है तो क्या स्टूडेंट को वो जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज क्लिकिंग ऑन ट्रू ऑप्शन, देन व्हाई द आंसर इज ट्रू। अगर उसका भी आपने कोई सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस दिया है तो क्या वो भी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट को दिखना चाहिए? दिस इज व्हाट ऑल द बेसिक सेटिंग्स जो आप कर सकते हैं। या लास्ट का ऑप्शन है डोंट शो एनीथिंग, just move on to next question. Now this is very important for us because जब हम स्टूडेंट से टेस्ट ले रहे हैं तो हमें उनको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन और उसी टाइम पे उसको पता चल रहा है कि मेरा रिस्पॉन्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आई थिंक ही विल गेट 100 मार्क्स फॉर श्योर। बट हमें उसको क्या करना है, सारी सेटिंग्स को ऑफ रखना है और सिर्फ ये वाली जो लास्ट सेटिंग है इसको हमें ऑन मोड में रखना है, एक्टिव रखना है। So first you have seen test name, second you have seen introduction, third you have seen theme, fourth you have seen question setting. In question setting we are having show one question per page, allow the student to move forward, don't show anything in the question while answering. If you want to randomize the order, then you can randomize the order also. तो आप यहाँ पे order को randomize कर सकते हैं। Now next is conclusion text. Now what exactly conclusion text is? Let us see in detail. So conclusion text तब लिखा जाएगा जब आपकी टेस्ट स्टूडेंट सबमिट कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप कोई कंफर्मेशन मैसेज किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल योर टेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अगर आप ये कंफर्मेशन देना चाहते हैं, लाइक हम गूगल फॉर्म्स में देते हैं, स्टूडेंट कोई भी टेस्ट करता है या गूगल फॉर्म फिल करने के बाद हमें एक मैसेज आता है कि योर फीडबैक हैज बीन सबमिटेड और योर टेस्ट हैज बीन सबमिटेड और यू हैव कंप्लीटेड ऑल द डिटेल सक्सेसफुली। इसी प्रकार का कोई एक कंफर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के लिए एक कंफर्मेशन मैसेज दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मैंडेटरी सेटिंग है जो कि पास और फेल के बारे में बताती है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट का पासिंग स्कोर पहले से ही तय करें, फॉर एग्जाम्पल आप 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि 50% पासिंग होनी चाहिए या 40% पासिंग होनी चाहिए या 38% पासिंग होनी चाहिए, वॉट एवर क्राइटेरिया यू डिसाइड एज पर योर टेस्ट, आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी बिकॉज इससे इजीली आपको स्टेटस मिलेगा कि वेदर द स्टूडेंट इज पास्ड और स्टूडेंट इज फेल्ड। तो आई एम कीपिंग हियर 50% पासिंग। अगर बच्चे के 50% आते हैं तो ही इज पास, अदरवाइज ही इज फेल। सो अगर स्टूडेंट पास हो जाता है तो व्हाट टेक्स्ट इज टू बी डिस्प्ले? सो आई एम राइटिंग हियर यू आर पास्ड in this exam. This is just
a simple message which will be a confirmation message to him. If he get failed in this exam, I'll write here, you are failed in this exam. Now, this is very important setting for all of us because जब हम Excel sheet को डाउनलोड करेंगे ये टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद, जब हमें इवैल्यूएशन मिलेगा, ग्रेड मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे, तब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास. Now, at the end of the test, what you want to display to the user? टेस्ट को होने के बाद आप यूजर को क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं? उसको स्कोर दिखाना चाहते हैं, उसने कितना स्कोर लिया, सपोज लेटर से 100 में से उसको कितने परसेंटेज मिले, या उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन में से अगर 5 अटेम्प्ट किए तो 5/5 आएगा, अगर 5 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए तो उसको 100/100 आएगा, या उसको 100% के साथ रिजल्ट आएगा. सो स्कोर इज टू बी मेंशन्ड एट द एंड व्हेन द टेस्ट इज कंप्लीटेड. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज योर चॉइस. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज मुझे डिस्प्ले नहीं करनी है इन द फॉर्म ऑफ स्कोर सो दैट स्टूडेंट अपने फेलो मेट्स को नहीं बताए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही सारे बच्चों का टेस्ट हो जाएगा, आप एक्सेल शीट को जनरेट करके वो एक्सेल शीट भी आप अपने गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं या स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं. बट इन केस इफ यू वांट टू गिव द स्कोर, if you want to show their responses were correct or incorrect, or you want to display the correct answer, you can give this setting also. अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ रख रही हूं बिकॉज जो सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा हम उसमें इसको ऑन करेंगे. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज हु इज हैविंग द एक्सेस कंट्रोल. क्या कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास में आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज जिस क्लास के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं उसी के लिए ही ये टेस्ट एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे हमें ये वाली सेटिंग ऑन करनी होगी, एनीवन हु एंटर्स अ पासकोड ऑफ माय चूजिंग. सो आई नीड टू सेट अ पासकोड. ये पासकोड वही रहेगा जो मुझे स्टूडेंट्स को देना है. तो आई एम चूजिंग द पासकोड हेयर 1 2 3. जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट को मैं मेरी टेस्ट मोड्स की लिंक देती हूँ तो मुझे ये पासकोड भी उस स्टूडेंट को देना मैंडेटरी है, जिसकी हेल्प से वो सिक्योरिटी रीजन पे अपना टेस्ट कर सकता है. Now next is how much time do the test taker have to complete the test. जो इंस्ट्रक्शन आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है आप उसके हिसाब से यहाँ पे मिनट्स या टाइम सेट कर सकते हैं. ऑल राइट, लेट अस से आपकी टेस्ट 5 मिनट्स की है या 10 मिनट्स की है या 20 मिनट्स की है या 1 आवर की है. इट्स अप टू यू हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गिविंग एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स वो स्टूडेंट आपकी टेस्ट दे सकता है. तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स में आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बिकॉज वी वांट ओनली कि 1 टाइम ओनली द टेस्ट शुड टेक प्लेस. ही शुड नॉट गेट मोर देन 1 चांस, अदरवाइज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पहले टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन उसको बाद में पता चला कि मेरे ये कुछ आंसर्स गलत हो गए हैं तो मुझे दूसरा अटेम्प्ट मिलना चाहिए. तो जनरली ऐसा नहीं होता, ये कॉमन लॉ है. तो हम इसको यहाँ पे 1 टाइम करेंगे. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा गया है कि एंटर योर नेम. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमें स्टूडेंट का कोई आइडेंटिफायर चाहिए, लेट अस से उसका नाम, उसका आईडी या उसका ईमेल एड्रेस, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं. लेकिन हम फ्री मोड टेस्ट मोड्स की बात कर रहे हैं. 2 टेस्ट मोड के वर्जन से, फ्री मोड का एंड पेड का. अगर आप पेड वर्जन लेते हैं $50 पे करके तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आईडी, विथ रिस्पेक्ट टू ईमेल एटसेट्रा. बट राइट नाउ फॉर फ्री मोड एक्सेस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं कि वो अपना नाम लिख सकता है. एंड दीज ऑल आर द ब्राउजर फंक्शनैलिटी. मेनी नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पे टेस्ट तो दे रहा है लेकिन अगर उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई आंसर नहीं आएगा, तो ही इज ऑफ द ओपिनियन कि व्हाई नॉट टू सर्च फ्रॉम गूगल इंजन. तो गूगल सर्च इंजन से ढूंढने से के लिए अगर वो जाता है तो उसको सारे आंसर्स मिल जाएंगे.
लेकिन पेड वर्जन आपको बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे ऑप्शन कॉपी पेस्ट, ट्रांसलेट, ऑटो कंप्लीट या राइट माउस क्लिक करने के, ये सारे ऑप्शन आप अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेड वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। फ्री वर्जन में ये सारी फैसिलिटी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें इन सारी सेटिंग्स को सेव करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन की सेटिंग की, हमने कलर स्कीम की सेटिंग की, हमने क्वेश्चंस की सेटिंग की। क्वेश्चंस में हम 1 क्वेश्चन पर पेज दिखा रहे हैं। स्टूडेंट को बोल रहे हैं एक क्वेश्चन एट अ टाइम अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट को हम बाकी की चीजें डिस्प्ले नहीं करेंगे सॉल्व करते समय। रिव्यू की सेटिंग्स रहेगी, दैट इज कंक्लूजन नोट and passing message, fail message, along with the score display and also with the access control। जब ये सारी सेटिंग्स आप एक बार वन टाइम सेटिंग्स को आपको डिफाइन करना है, फिर ये हर बार वही एप्लीकेबल रहेंगी। आप इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन दी सेव बटन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप सभी देख सकते हैं कि हम पहले सेटिंग्स पे थे। ऑल राइट, लेकिन अब जैसे ही हमारी सेटिंग्स हो गई, हम क्वेश्चंस के पेज पे आ गए। नाउ दिस इज द एरिया, ये ऐसा एरिया है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेविगेट करने हैं ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को टाइप करना है और टेस्ट को जनरेट करना है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट फेज है दैट इज क्वेश्चंस फेज। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया इंसर्ट, एंड टू द राइट हैंड साइड उसी के बाजू में ही दिया है, सॉरी नॉट राइट हैंड साइड, उसी के बाजू में दिए हैं उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइप्स। सो विच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू चूज फॉर योर स्टूडेंट। Now let us say I am choosing first question as multiple choice question. Now you can see here all the settings are being made. सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन टाइप करना है। अब ये इकोनॉमिक्स की टेस्ट है, सो आई एम राइटिंग 5 to 6 questions to show you as a sample based on economics only. So I am writing here the word micro is derived from the Greek word. Now what will be the options? So I am writing here choices, इसको डबल क्लिक करना है और आपको choices को लिखना है। Whichever choice you want you can write. So I am writing here the correct answer is micros. Then I am writing another options which are incorrect. All right. Or I am writing here none of the above. Now this is the first question which is prepared. Now along with this I need to set the answer key. अब आंसर की सेट करना है, तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको क्लिक कर दीजिए और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एरो दिख रहा है आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सेट फॉर अस। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड क्वेश्चन के मार्क्स दिए हैं। इंडिविजुअली आप कितना देना चाहते हैं स्कोर, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स, कितने का एक क्वेश्चन है तो आप अपने मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन ऐड द अदर चॉइसेस एज वेल। You can add the other choices as well by clicking on this particular option. If you want to delete any choice, just on the right hand side, a delete answer button is given. Delete button is given. So if you want to delete any choice, you can delete it. Now this is the first question which is ready for me. Now if I want to choose any another question, but yes, again of the same कैटेगरी, देन मैं यहां से नहीं जाऊंगी। यहाँ पे एक प्लस साइन दिया गया है, इस प्लस साइन को अगर मैं क्लिक करूंगी तो एक डुप्लीकेट क्वेश्चन यहीं पे ही आ जाएगा। नाउ सपोज आई एम राइटिंग हियर, just showing you all the options. The word macro is derived from the Greek word and I am writing the correct answer macros, and rest of the options are wrong. I know that very well, so I'm just making one little change. All right, so this is my second question. Now ये तो हो गया डुप्लीकेट क्वेश्चन के ऊपर ही आप अपने क्वेश्चंस को चेंज कर रहे हैं।
अब आपको अगर कोई तीसरा क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बेस पे करना है तो आप ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी चूज कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको टाइप करना है. सो आई एम राइटिंग हियर, इज माइक्रो इकोनॉमिक्स theory a price theory? So answer is correct. Yes, it is a price theory. So answer is true. True is selected from here. If you want to give any explanation, you cannot give right now because it is available only in paid version. So some options are good for you while some are like based on the paid system. Now next question, if I want to add fill in the blanks, now in fill in the blanks, I can add the question like, for example, dash economics is also known as slicing method. Now this is the question I am writing. Now which economic is known as slicing method? I am writing the possible choices answer. Suppose student ने M कैपिटल लिखा है, या स्टूडेंट ने एम स्मॉल लिखा है, या स्टूडेंट ने सारे ही लेटर कैपिटल लिखे हैं. सो ही मे गिव आंसर अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस. ऐसे केस में उसके आंसर को करेक्ट इनकरेक्ट क्या उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए हमको 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, एटसेट्रा. ऑल राइट. Now next question, if I want to choose, I can choose the matching. Now here already match the pair pro forma is given to us, but you can make your own match the pair based question. So first of all, delete. I am making only the example of 2 match the pairs. So I am deleting the rest of the 2 fields. So सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइक्रो, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दूसरा रहेगा मैक्रो. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर राइटिंग द क्वेश्चन, राइट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर राइटिंग द पॉसिबल चॉइसेस ऑफ आंसर. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आई नो लंपिंग मेथड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आई नो स्लाइसिंग मेथड होता है. सो आई हैव रिटन माय आंसर्स, बट हाउ आई विल कम टू नो व्हिच आंसर स्टूडेंट इज गोइंग टू टिक. तो उसका कुछ करेक्ट पैरामीटर होना चाहिए. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो आप इसको न्यूमरिक करके इसका मैचिंग कीजिए. फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर का मैचिंग है, सेकंड वाला ऑप्शन जो राइट हैंड साइड में लिखा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी. और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका जो मैचिंग आंसर है वो है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी. अब बहुत बार क्या होता है, टेस्ट मॉस आपके क्वेश्चंस को शफल कर देता है. तो ऐसे केस में क्या आप बच्चों को पार्शियल क्रेडिट, मतलब अगर सपोज उसने एक मैच द पेयर सही किया है, दूसरा गलत किया है, तो क्या आप उसको पार्शियल स्कोर देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी. अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको बंद करना पड़ेगा. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने मैच स्टाइल अभी न्यूमेरिक पैटर्न रखा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए आसान जो तरीका रहेगा दैट इज टेक्स्ट स्टाइल. तो अब जब मैंने इसको टेक्स्ट स्टाइल में किया तो मुझे माइक्रो में दिखाई दे रहा है स्लाइसिंग, मैक्रो में दिखाई दे रहा है लंपिंग. यही क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट इसी प्रकार से ही देगा जैसा मुझे यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है. नाउ दिस इज हाउ द सैंपल क्वेश्चन पेपर आई एम मेकिंग ऑफ 5 questions. You can try at your end. Now I am writing here match the pair. All right. 5 questions on some categories which are being given here. You can access more options at your own end also, because here I can give the sample. Now once you are done with your test, एक बार अगर आपने टेस्ट को जनरेट कर दिया, फ्री मोड में आप 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर बना सकते हैं. 50 क्वेश्चन तो हमें देने भी नहीं होते हैं, हमें 10, 20, 15 इतने ही देने होते हैं. या फिर भी अगर आपको 50 क्वेश्चन तक बनाने हैं तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका लिमिटेशन है. देन नेक्स्ट इज, एक बार आपने क्वेश्चंस को रेडी कर दिया, अब बारी आती है स्टूडेंट्स को पब्लिश करने की. नाउ आई विल क्लिक ऑन पब्लिश बटन. नाउ टेस्ट में उसकी सबसे खास बात ये है कि अगर आपसे आपके एचओडी कहते हैं
कि आपको क्वेश्चन पेपर वर्ड फॉर्म में मुझे लाके देना है या डाउनलोड करके देना है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बनाया है वो बगैर एक्सप्लेनेशन के और बगैर आंसर के आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड बटन। जैसे ही मैं इस डाउनलोड बटन को क्लिक करती हूँ मेरे पास एक क्विज की फाइल आ जाती है और इस फाइल को मैं ओपन कर सकती हूँ। I can open this file. Now everything is written here. You can write in the introduction section your subject code, your course objective, your instruction, and second important thing is कि ये document एडिटेबल इन नेचर है। आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लाइक दिस टेस्ट विल बी सॉरी students will be able to understand or evaluate themselves about microeconomics. Suppose I'm writing this one sentence. So you can make changes whenever you want to make changes in the word file. Now see, question is written, points is written, question is written, point is written, question is written, point. Now here you can see पहला question तो हमने ये वाला दिया था, ये shuffle हो गया, तो टेस्ट मोड आपके क्वेश्चन को शफल कर देता है. देयर इज नो सच प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन डाउन यू कैन कंप्लीटली क्लिक ऑन select this question and press Ctrl X key, okay, and finally प्रेस कंट्रोल वी की. तो आपके क्वेश्चंस का ऑर्डर आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. तो ये आपको मल्टी फैसिलिटीज देता है. अगर आपको आंसर्स के साथ क्वेश्चन पेपर जमा करना है तो ऐसे केस में आप एक्सप्लेनेशन और आंसर्स के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को, और फाइनली आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे. नाउ व्हेन यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड, नाउ द फाइल विल बी लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे जो भी करेक्टेड ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस मेरे सिलेक्ट होके आए हैं. नाउ इससे एक हेल्प ये हो जाएगी कि सपोज आपके सब्जेक्ट को आगे चल के कोई और पढ़ाने वाला है, he should be having a ready-made question paper along with the answer key. So this is the benefit of this particular file downloading. Otherwise it's up to you how you want everything on test mode. So on the right hand section मैंने आपको right hand section का export and print बता दिया. अब हम बारी देखते हैं टेस्ट को प्रीव्यू करने की. टेस्ट दिखेगा कैसे? Always have a habit to see your test before it is getting published so that कोई changes आपको करने हैं तो आप उसको कर सकते हैं. तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली टेस्ट को पब्लिश कीजिए स्टूडेंट्स के लिए या तो फिर आप टेस्ट को पहले देखिए. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट को सबसे पहले देख रहे हैं कि कैसा दिखेगा मेरा टेस्ट. तो मेरे टेस्ट की पहले हेडिंग आएगी जो मैंने टेस्ट का नाम दिया. फिर मैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूंगी. टेस्ट इज बेस्ड ऑन CU1, टेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल. कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया जाएगा और जैसे मैंने सेटिंग रखी थी कि यूजर एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करे और फिर सबमिट करे, उसी प्रकार से होगा. सपोज आई एम राइटिंग हियर माइक्रो and I'm writing here macros. I'm randomly selecting anything. Okay, it's not selecting the correct answers always. You can select for preview के लिए हम अभी ऐसे ही कर रहे हैं. I'm just showing you. So I'm randomly selected every answer and now we can see that कि ड्यूरेशन टाइम कितना बच्चे ने लिया, स्टूडेंट को स्कोर कितना हुआ, टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, कौन सी डेट को उसने कितने समय पे टेस्ट दिया है और उसको कंफर्मेशन मैसेज क्या जा रहा है. If I'll increase its zoom size, now we can see it. And the confirmation message is that you are passed in this exam. All right, you are passed in this exam. So इस प्रकार का हमें क्वेश्चन पेपर बच्चे को देखने को मिलेगा. तो अब हम फाइनली क्या करते हैं, हम इस टेस्ट को पब्लिश मोड में लेके आते हैं. तो पब्लिश मोड में हम लेके आए. नाउ दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अभी मैं आप सभी के साथ चैट बॉक्स में ये लिंक शेयर कर रही हूं. ऑल राइट, आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन द चैट बॉक्स. So
everyone can access this link at their own end, and the passcode you have to type is 123. I request each one of you, please access this for a while for 2 minutes after I explain it. All right. So what I can do is, ये मेरी लिंक है, ये मुझे बच्चों के ग्रुप में दे देनी पड़ेगी, और जैसे ही कोई स्टूडेंट इस लिंक को क्लिक करेगा, ओके, उसे सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन में अपना नाम लिखना मैंडेटरी है. सो आई एम राइटिंग हियर रिंकी एम. आई एम राइटिंग पास कोड जो मैंने उस स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए दिया है, दैट इज 123. एंड फाइनली ही कैन बिगिन विथ हिज टेस्ट. सो नाउ टेस्ट उसको किस प्रकार से दिखेगी? उसी प्रकार से दिखेगी जैसे हमारा प्रीव्यू था. नाउ स्टूडेंट कैन गिव योर टेस्ट. Okay, timer is already being started. Time remaining 9 minutes 51 seconds 52 seconds. So you can give this kinds of test to your student, and it is also somehow very simple mode of giving the test to the students as compared to the Google Forms. Now after giving the test, when the student will finish the exam, he may easily come to know ki how many questions were correct and what is the percentage, and by what time he has completed his test, and what is the name of that particular student, on which date, at what time. All the credentials, सारी चीजें यहाँ पे उसको देखने को भी मिल जाएंगी, और वो टेस्ट दे के बाहर चला भी जाएगा. सो लॉग आउट भी कर सकता है. Okay, so in this way, your student can give the test. Now, if you are an administrator, आप इसी पैनल पे हैं, और अगर आपको वापस से टेस्ट मोड में जाना है, तो आप अपना पासकोड जो भी आपका था 1234 और लेटर्स से 123, यू हैव टू टाइप इट, एंड फाइनली आप वापस से उसी डैशबोर्ड में आ गए. अब हम देख रहे हैं, पहले ये डैशबोर्ड की स्टेप्स टिक नहीं थी, अभी ये राइट टिक है, दैट मीन्स ग्रीन कलर में इंडिकेटेड है. इट मीन्स यू हैव परफॉर्म्ड ऑल दी स्टेप्स. आपने क्वेश्चंस लिख लिए, आपने सेटिंग्स कर दी, आपने टेस्ट को पब्लिश कर दिया. अब बारी आती है बच्चे का रिजल्ट देखने की कि वेदर ही इज पास्ड और ही इज फेल्ड. सो यू हैव टू क्लिक ऑन रिजल्ट, and as I can see that along with me, 4 of the participants of this particular session has given their test. एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है रिजल्ट शीट की, कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, ये सबका टोटल एवरेज स्कोर भी बता देता है, प्लस क्रॉस इंडिकेट्स दीज क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट, राइट इंडिकेट्स दीज क्वेश्चंस वर करेक्ट, how much time you people have taken, when you have started, when you have finished on, what is the score. Now histogram is also being shown. Now what I will do is, मुझे इसकी एक्सेल फाइल जनरेट करनी है. अब अगर मुझे इसकी एक्सेल फाइल जनरेट करके मुझे अपने HOD को सबमिट करनी है, तो 2 तरीके हैं. एक है पॉइंट ग्रिड मेथड, दूसरा है रिस्पॉन्स ग्रिड. तो पॉइंट ग्रिड मेथड पे आप क्लिक करेंगे, then click on open file, and finally this excel sheet is with you with all the details. कितने परसेंटेज बच्चे को मिले मार्क्स, कितने पॉइंट्स उसने अर्न किए हैं, टोटल कितने पॉइंट्स का था, और ये क्वेश्चन में उसको 1010 इंडिकेट्स, 1 इंडिकेट्स करेक्ट आंसर, 0 इंडिकेट्स इनकरेक्ट. ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द मार्क्स व्हिच ही इज हैविंग. ये एक पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है रिस्पॉन्स ग्रिड पे आप क्लिक कीजिए, अगेन अ फाइल विल बी डाउनलोडेड. अब यहाँ पे 1010 के बदले में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन से रिस्पॉन्सेस दिए हैं, वो रिस्पॉन्स के करेक्ट आंसर की शीट मिल जाएगी. ये एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी गूगल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है. तो टेस्ट मोड सर्व्स ऑल द पर्पस ऑफ वी टीचर्स, स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अगर हमें सिंपल टेस्ट जनरेट करनी है, ऑन द स्पॉट टेस्ट जनरेट करनी है, अलॉन्ग विद दैट स्कोर रिजल्ट्स देखना है, स्कोर जनरेट करना है, we can go with this particular handy tool for us. So this is all about the test modes, and if you want to log out, you can log out from this. So this is all about the test modes. Preeti ma'am, I have completed with one particular topic. Shall I move on to next?
Yes, Ma'am, ma'am. I have, If anybody has any doubt, we will discuss first with this software. किसी को कुछ All पूछना right. है इसके बारे में? ma'am, Yes, एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए. ma'am, is there any limitation for students, number of students? See, How ma'am, many students participate? actually टेस्ट आपके सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन जब बात आती है स्कोर की, ऑल राइट, जब बात आती है आपकी स्कोर की, व्यू रिजल्ट्स की, तब यहाँ पे एट अ टाइम आप सिर्फ 100 लोगों की शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल राइट. Okay, okay, This is madam. only the limitation, but yes, as many as students to whom you are passing your link, they can be able to give your test. Their results will be also recorded, but their results will be only displayed 100 के बैच में. Okay, Okay. okay. So फर्स्ट 100 का आप एक्सेल जनरेट कर दीजिए, फिर सेकेंड 100 का जनरेट कर दीजिए, थर्ड का, क्योंकि ये फ्री मोड है. पेड मोड में आपको सारे फैसिलिटीज है, A to Z. Thank you, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Just I want to know ki where these files are saved. Like in Google Form, that file or the test paper is saved in Google Drive. And what Yes. about in software? In this software, I have already given you the option that you need to download this file. Okay. So this Okay. file is saved in the download folder. ये download का folder है, उसी में ये file save है. आप जैसे ही इस फाइल के show in folder पे क्लिक करेंगे, आपको ये फाइल डाउनलोड के फोल्डर में मिल जाएगी. आप इसको रीनेम कर सकते हैं कि आपने कौन सी टेस्ट ली, so that it could be easily identifiable to you. नहीं मैम, जैसे कई बार होता है ना, हम एक दिन पहले ही टेस्ट तैयार कर लेते हैं और दूसरे दिन स्टूडेंट्स को हम देते हैं. तो मैम is इस it केस possible? में इस केस में आप टेस्ट को कैसा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेस्ट पेपर ऑलरेडी एक्सेल शीट में बना दिया है या वर्ड में ऑलरेडी आपके पास हैंडी है, आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? जिस दिन आपका टेस्ट है आप उस दिन दे सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. ओके, ओके, ठीक है. बिकॉज दिस इज व्हाट द टेस्ट मोड इज. हाँ, एक्चुअली हाँ, फिर वो गूगल फॉर्म ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हाँ. फिर दिस. देखिए मैम, सारे प्रॉज एंड कॉन्स तो सभी में रहते हैं, बट यस, Okay. सिंपलर टूल के लिए अगर आप जाते हो तो इट विल टेक यू वेरी लिटिल टाइम. ओके, बट गूगल फॉर्म में आप जाते हो, गूगल फॉर्म में नो डाउट गूगल हैज गिवन अस मेनी ऑप्शंस, मेनी चॉइसेस, बट यस, few of the institutions, they are also adopting this practice also, because this is simpler in nature and everything comes in handy. That's why. So Yes, it's up yes. to you, your requirements. All right. Okay, thank you, Yes. ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Yes. Yes. Can we add audio and video to our questions? Sir, possibility is there. You can go to questions. If I'll click on this questions, then there you can embed any video and you can give the link of any audio. You can Okay. embed any video. YouTube के वीडियो का URL आप यहाँ पे दे दीजिए, उसको इंसर्ट कर दीजिए. अच्छा. All right. Okay. Okay. Yes, Thank you. thank you so much. Yes, anyone else? Madam, Yes, ma'am. actually, when we get when we enroll to the test with a different names, that is allowing us to do so. For example, if a student Madhura Yadav, if I am going to take the test under a Madhura Yadav named, so it has allowed me. And also, if I just want to correct my marks, and if I want to enroll with the or if I want to access that with Madhura name, that is also allowing me. I Yes, just ma'am. tried. See, So the thing how is, is application process? the thing is, the very important thing is, we are only going to give test to only those candidates who are our respective students or bona fide students. All right. Anonymous people will not be able to access this unless and until the link is being passed to them. Okay. So this is what usually happens with us. Like, कोई anonymous student आया है जिसे टेस्ट नहीं देना है, अगर आप उसके पास लिंक चली गई है
तो वो आपको टेस्ट दे रहा है। नाउ दैट इज द आइडेंटिफाइबल क्वेश्चन टू यू ओनली, कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इज योर बोनाफाइड स्टूडेंट और नॉट। बिकॉज जनरली व्हाट आई डू, गूगल फॉर्म में अगर मैंने टेस्ट बनाया तो आई यूज टू पास इट ऑन बीसीसीए फर्स्ट ईयर के ग्रुप में, आई डू नॉट पास इन बीसीसीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। हाँ, इसके थोड़े ड्रॉबैक्स हो सकते हैं बिकॉज दिस इज अ फ्री मोड है, लाइसेंस मोड नहीं है। एंड दैट टू एक और फैसिलिटी है जो मैं आपको बताना भूल गई, कि सपोज ये ही टेस्ट पेपर लेट अस से दो फैकल्टीज शेयर करते हैं, दो फैकल्टीज एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सेक्शन ए में मैं हूँ, सेक्शन बी में आप है, मधुरा मैम है। तो ऐसे केस में मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की कॉपी को यहाँ से शेयर भी कर सकती हूँ। ये टेस्ट का शेयर बटन आप देख रहे हैं, टेस्ट यूटिलिटीज, तो ये शेयर को आप क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं। दिस आई फॉरगॉट टू टेल यू। तो यहाँ पे जैसे मैंने रिंकी मूलचंदानी अपना आईडी दिया है, अब ये टेस्ट रिंकी मूलचंदानी मैडम के पास भी चला गया है। नाउ इफ व्हाटएवर शी वांट्स टू डू शी कैन डू विद दैट टेस्ट आल्सो। वो मैम तभी पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल है जब आप ये लिंक किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जिसका टेस्ट से लेना देना नहीं है। दैट मीन्स द पर्सन हु इज नॉट कंसर्न विद द टेस्ट, if the link is being passed to him as an anonymous, then he may use that link. Okay, madam, thank you. But the Yes. scenario is like our student itself, if they say that I have entered without my initials, I gave the test, but madam, I just entered with my initial. Once again, I have Yes. given the test. If the two duplicate entries will be created, no, for a single student, there will be a two entries. How can we avoid this one? Ma'am, that is available in paid version, not in free version. Okay, okay. Yeah, that is because all those features, if you wish, like you need to know what are the facilities are being given by TestMoz in paid version. All right, so you can access all these things. You can print your questions, you can add any number of things, and even mathematical questions can also be evaluated. So if you are taking free, all these things are missing. But if you want all these things to be in your test paper, नेगेटिव क्वेश्चन की मार्किंग होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में, देखा जाए तो होना भी चाहिए, बट वो इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये फ्री मोड है. What my today's the agenda was to tell you the different tools which are handy available for us and which makes our job simpler. It is not mandatory that you have to go with this particular tool. There is Socrative tool also where you can give formative test also and non-formative test also. There is Kahoot also, which is a fun and the entertaining learning method also. Third one is the TestMoz also. Fourth one is the Quizlet also. Quizzes tool is also there. So there are various tools, but yes, till now what has been seen or what has been experience is ki other than Google form, if anyone wish to generate a simple test, like all the faculties are not acquainted with the technology, तो जो लोग अगर टेक्नोलॉजी से नहीं संबंध रख रहे हैं उनके लिए TestMoz काफी आसानी देता है. तो that's what the purpose is. Madam, instead of the name, can we give email ID? No, ma'am. I already declared Okay, during that is the in a paid yeah version. yeah. Okay. Thank If you go for $50, if you can afford for $50, then you can get each and every facility from this test. In fact, a student will not be allowed to right click also on any other page. He will not be allowed to go and switch on any window. He will not be allowed to start cheating with any other Word file, Excel file, PPT, or even he will not start any window also when this test is on. All these security measures are being given when the paid version is to be followed. हॅलो मॅडम. Yes. आपण यामध्ये अगोदरच क्वेश्चन पेपर तयार करून नाही ठेवू शकत? Preeti ma'am. यस Hello? यस रिंकी मैडम, सर पूछ रहे हैं इसमें अपन पहले से ही क्वेश्चन पेपर बना के नहीं रख सकते क्या? ये पहला क्वेश्चन जो पूछा था ना, सेम क्वेश्चन बना के आप रख सकते हैं, बट फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज कि योर एडमिन मोड, ये वाला जो पेज है ना, ये पेज की लिंक आपको कहीं तो भी सेव करके रखनी पड़ेगी. ओके. फिर आप
इसके एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन में जाके आप कभी भी अपना टेस्ट देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस को एडिट करना चाहे कर सकते हैं। जो पहले मैडम ने क्वेश्चन पूछा था वो यही था, बट मैंने उसका आंसर जो दिया था वो इसलिए दिया था कि आप पहले क्वेश्चन पेपर बना के रखो, जब आपको ऑन द स्पॉट टेस्ट देना है तब आप टेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा ही होता है इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे पहले से बना के रखना है, वो चॉइस भी है इसमें पॉसिबल, बट फिर वो वाली जो लिंक है हमारी जहाँ पे हम अभी थे एडमिनिस्ट्रेटर वाली, उसको आपको कहीं तो भी कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कैसा होता है मैडम, टेस्ट हम सवेरे लेते हैं तो सवेरे उठ के वो क्रिएट करना थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है ना, तो एक हाँ दिन जी पहले ही सर, करके बिल्कुल रखते हैं ना सब दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई इस एग्री तरह विद दिस, इवन आई हैव आल्सो फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज। यस, थैंक यू मैडम। Yes, 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 I agree. Thank you so much. Shall I move ahead, Preeti ma'am? Yes, ma'am. Proceed Yeah. with the next software. Okay, so now we are going to see the another important tool that is known as Wakelet. Now, why this Wakelet has come into existence just in the era of pandemic, when we were not getting any platform कि हम हमारे बच्चों के साथ at a time सारी फाइल्स किस तरीके से शेयर करें। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां मैं यूट्यूब की लिंक भी दे सकूं, जहां मैं पीडीएफ भी दे सकूं, जहां मैं अपने नोट्स भी दे सकूं, जहां मैं बच्चों के असाइनमेंट भी मंगवा सकूं, और उसी के साथ साथ अगर मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है, 10-10 मिनट की छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं, तो मैं वो भी दे सकूं। तो अगर ऐसी कोई हमारे पास समस्या है कि हम एक ही पर्टिकुलर जगह पे सारी रिसोर्सेस बच्चों को के लिए रख देते हैं, और उस सिर्फ एक लिंक को हम बच्चों को अगर पास करते हैं तो बच्चों को आसानी होगी कि वो सारे रिसोर्सेज को एट अ टाइम एक्सेस कर सके। तो वेकलेट का पिक्चर यहाँ पे आता है कि वेकलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप स्टूडेंट के साथ एंगेज कर सकते हैं। वेकलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच गिव्स यू द ऑथोरिटी टू कॉलेट द ऑनलाइन रिसोर्सेज इन वन प्लेस। Wakelet is one such platform where the resources like videos, text, images, PDFs, Twitter tweets, Google Drive material, OneDrive material, they all can be created at a single click. So every point of time I need to give or pass on one file to the WhatsApp group, then again another file to the WhatsApp group, then again I need to scroll back who has given which assignment, again I need to scroll down which assignment is going on. So in order to remove all these obstacles, Wakelet आपके सामने आया है। So Wakelet में आप क्या specifically learn करने वाले हैं? How to start with Wakelet? So Wakelet is a place where you can collect your resources. Wakelet creates collections for you in the terms of resources like videos, audios, or PDFs, books, marks, anything. So how to collaborate, how to share this particular Wakelet with other apps also, like Google Classroom के साथ इसका integration है। अगर आप Google Classroom में Wakelet की लिंक दे देते हैं तो बच्चा जब Google Classroom में जाएगा, and when he will click on Wakelet link, he will be able to see all the resources at one place. So you can invite other also, you can engage students more efficiently using Wakelet, you can bookmark anything, you can organize, you can create and present your resources. That is what the curate is. So Wakelet is a free platform for all of us. Wakelet allows us to save, organize, and share content. Wakelet allows us to save content also, and Wakelet allows us to collaborate with others. Now, why Wakelet? There are few reasons why Wakelet, why not any other particular application? Because it is free for teachers, free for student. It is easy to learn. It is a single clicking method. It is user friendly tool. It is collaborative tool. It works very efficiently with the Google environment. We can work with Google Drive. We can work with resources of Gmail. We can work and make it integrate with the Google Classroom also. हम इसको Google Classroom के साथ चला सकते हैं, हम किसी के साथ भी कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, हम इसको आसानी से सीख सकते हैं, ये यूजर फ्रेंडली है, ये टीचर्स और स्टूडेंट के लिए बहुत काम का है। अब वेकलेट्स के बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक टीचर के पास एक नॉर्मल सी जीमेल आईडी होनी चाहिए
जो स्टूडेंट्स अगर अपना असाइनमेंट्स देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उनके पास जीमेल आईडी होने चाहिए। जो भी रिसोर्सेस आप उस पर्टिकुलर कलेक्शन में डालने वाले हैं, वो रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, पीडीएफ, ट्वीट और एनीथिंग, ये सब आपके रेडी होने चाहिए। नाउ हाउ टू स्टार्ट विथ वेकलेट and create the collections? Here we go with the step. So I have already dealt with the introductory portion, that Wakelet is a very creative way to engage with the student. Wakelet is a way where online resources can be kept at one place. So this is all about the Wakelet is, and now हम practical hands-on training के लिए Wakelet की साइट पे जाएंगे। तो ये साइट आप सभी ने नोट करनी है, that is wakelet.com. So we will go directly to wakelet.com and follow all the necessary steps which are being required for us. So I'll be going directly here, wakelet.com. Is my screen visible? Yes, madam. Yes, is my screen visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, yes. ma'am. Okay. Thank you so much. So can anyone will tell me what will be the very first step to register for the Wakelet? Anyone? If you are the first Sign up. time user, very good. If you are the first time user, what you have to do is, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, sign up करना है. This is the first step. Now after doing sign up, we all are having our Google account with us. All right, we all are having our Google account with us. So I'll continue with Google. Now this is the second step. Now the third step is select your email ID with which you want to create your collection. So I am selecting my second Gmail ID, that is Rinki Mulchandani, Rinki DAIMSR @gmail.com. And now I'm writing here password. That is not to be known. All right. So now I have entered into the platform of wakelet.com. Now this is the Wakelet interface. Can we see here Wakelet interface? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now I need to give one note point to all of you. That is, I want to share one important point with you. जब मैंने उसको साइन इन किया तो उसने डायरेक्टली मुझे यहाँ पे आने को एक्सेस कर दिया. इट मीन्स उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं यहाँ पे आऊं. लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम, व्हेनेवर फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू लॉग इन इट विल आस्क यू कि आपको कौन सी आईडी टाइप करनी है एज ए यूजर नेम. तो इट विल आस्क यू 2 to 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक आपका यूजर नेम पूछ लेगा क्या करना है, तो आप वो यूजर नेम अपना दे सकते हैं. सिर्फ ये एक स्टेप रहेगी एडिशनल जब आप उसको साइन अप करेंगे. तो साइन अप जब भी हम करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है. वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म या तो आपसे भरने को पूछेगा या तो आपको यूजर नेम डालने को पूछेगा. दिस इज ओनली द वन स्टेप which was being missed from my side. But yes, when you will be using it as a new user, what you have to do is you have to just go to wakelet.com, click on sign up. After sign up, it will ask you the Gmail ID and password, and after writing the Gmail ID and the password, it will ask you what will be your username. Select any username. So it will provide you 1, 2 or 3 option. You may choose anyone. Like I have chosen Rinki Mulchandani 103. And after completing that step, you will come to this particular interface. So am I clear? Yes. Yes, ma'am. Yes. So now what we will do is, अब हम क्या करेंगे, अब हम वेकलेट की साइट पे आएंगे. सबसे पहली स्टेप थी हमारी वेकलेट की साइट पे आना. दूसरी स्टेप थी हमने साइन अप किया. तीसरी स्टेप थी हमने जीमेल आईडी और पासवर्ड डाला. फोर्थ स्टेप थी कि हमने यूजर नेम अपना सिलेक्ट किया जो भी पसंद का है. और पांचवी स्टेप है हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस दिस इंटरफेस फर्स्ट. ऑन द राइट हैंड साइड आप किसी और पर्सन का कलेक्शन भी सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये होम टैब है, ये आपका लॉगिन का है बटन, आर करके जो है. ऑल राइट,
ये आपके नोटिफिकेशन या अलर्ट्स हैं, और ये राइट हैंड साइड में जो एकदम राइट हैंड साइड में आप ऑप्शंस देख रहे हैं, these are the options to see your spaces, see your collection, see your profile, or you want to do any settings with your accounts. So this is all account settings. And on the left hand side you can see that economics is there, 1E. Now I want to tell you two terms here. मुझे आपको यहाँ पे दो terms बतानी है, एक है collection, दूसरा है space. एक है collection, I'll write here, all right. One is collection, whereas another one is space. Now space आपके लिए एक separate area रहेगा where you keep your resources. Okay, मतलब अगर आपको एक इकोनॉमिक्स का सेपरेट एरिया बनाना है, एक मैथ्स का बनाना है, एक साइंस का बनाना है, एक लेटस से लॉ का सब्जेक्ट का बनाना है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कलेक्शंस बनाने हैं तो उसके लिए आप स्पेस यूज करेंगे, ऑल राइट, उसके लिए आप स्पेस यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको सिर्फ कलेक्शंस वहां पे सेव करके रखने हैं, ऑल राइट, फिर वो चाहे कलेक्शन किसी का भी हो, इकोनॉमिक्स का हो या लेटस से कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो या लेटस से अकाउंट सब्जेक्ट का हो, अगर आपने कुछ भी आपको पोस्ट करना है, कुछ भी आपको कलेक्ट करना है, रिसोर्सेज को जमा करके रखना है, तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं. लेकिन स्पेसेस को हम इसलिए ही यूज करते हैं कि अगर मुझे कोई अलग से सेपरेट सब्जेक्ट का, सेपरेट फील्ड का, सेपरेट एरिया का कोई फोल्डर बनाना है, तो स्पेस आपके लिए फोल्डरिंग का काम करेगा, ऑल राइट. कलेक्शन में भी आप क्या करेंगे, जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब भी उसी एरिया में जाएंगे, बट दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, एक ही फर्क है कि यहाँ पे अगर आपको सेपरेटली कुछ देना है तो आप उसके लिए एक सेक्शन बना दीजिए, जैसे मैंने इकोनॉमिक सेक्शन बनाया हुआ. ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ. तो सबसे पहले हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं. ओके, कलेक्शन मीन्स वेयर वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल अवर रिसोर्सेज एट वन प्लेस. These resources may be of similar nature, these resources may be of different nature also. So I'm clicking on it. Everything is click, सब कुछ क्लिक के ऊपर डिपेंड करता है. नथिंग इज लाइक कि आपको कोई और चीज अलग से यहाँ पे उठा के रखनी है. नो, एवरीथिंग इज ऑन अ वन क्लिक वे. तो फर्स्ट थिंग इज what we have to do is we have to click on create a new collection. Now second is if you want to change the cover page, click on it. Now you are having two options, either you upload the image जो आपके कंप्यूटर में है और you go through the library. So I am going through my computer image. तो अपलोड द कंप्यूटर इमेज पे क्लिक किया. ना डेस्कटॉप पे एक वर्कशॉप नाम का फोल्डर है, आई क्लिक ऑन, आई यूज दैट वर्कशॉप फोल्डर. ओके, नाउ this is the folder. Okay, so I'm having this workshop folder. Workshop, I'm having one image. उसको यूज कर सकते हैं सिंपल तरीका. It will take time of 1 to 2 minutes depending on the size of image. Something went wrong. All right, let me select any image. Okay, so I'm uploading this image, let us say. Click on save. Now you can see that this image will be my background. If you don't want this image, you can edit the image also. You can click on edit cover image. You can choose from the library. Now in library, you are having different images which you can put for your collections. Like I want this image, so I'll select this. Now this image is being selected. Full cover page or half cover page you want to make, you can make. Let us choose some decent one. Okay, this is the decent image. Okay, so you want to choose full cover page, you want to choose half cover page, it's up to you. So this is the first point I have come across. The second point is you write the collection name. If specifically you want to write your collection name, it is up to you. Otherwise, you can mention anything else also.
microeconomics. I am making collection on microeconomics. All right. So now if you want to add any description, you can write here description also. If you want to give program objective or course objective in terms of CO1, CO2, CO3, CO4, you can mention here also all these things as an introductory text. ठीक है. उसके बाद अब हर एक चीज यहाँ पे क्लिक के थ्रू ही होगी, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, सिर्फ हमको क्लिक करते जाना है और चीजों को रखते जाना है. तो सबसे पहले आपकी स्टेप रहेगी, आप प्लस साइन पे क्लिक कीजिए. यू क्लिक ऑन प्लस साइन. नाउ इट इज आस्किंग मी ऑल द डिफरेंट ऑप्शन. क्या आपको कोई वेबसाइट यहाँ पे डालनी है, क्या आपको कोई टेक्स्ट यूज करना है, क्या आपको कोई इमेज यूज करना है, डू यू वांट टू यूज एनी बुक मार्क, डू यू वांट टू यूज एनी पीडीएफ, or do you want to use any other apps other than this? So suppose I am going to new tab. I am writing here difference between micro and macroeconomics, and I am selecting this particular website, key differences. Okay, I go to this website. मैं इस वेबसाइट पे जा रही हूँ. ये वेबसाइट का जो URL है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ऑलराइट, ये URL को आपको क्या करना है, इस एड्रेस को कॉपी करना है. यू हैव टू कॉपी दिस पर्टिकुलर एड्रेस, ऑलराइट, एंड यू हैव टू मूव बैक टू योर वेकलेट and you have to simply paste this particular address in this web address box. आपको simply copy करके क्या करना था, paste करना है. अब आप देख रहे हैं कि ये particular article जो Google पे present था, अगर मुझे किसी student को as a resource share करना है तो मैं उसके साथ कर सकती हूँ. इसके headings अगर आपको change करने हैं तो आप edit पे click कीजिए. आप यहाँ से heading change करना चाहते हैं, उसको delete करना चाहते हैं, delete कर सकते हैं. ये मैटर भी आपको नहीं चाहिए, आप सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए. आपको इमेज एडिट करनी है, आप इमेज भी एडिट कर सकते हैं. फाइनली डन पे आपको क्लिक करना है. ये हमारा पहला कलेक्शन तैयार. सेकंड कलेक्शन, क्लिक ऑन प्लस साइन. अगर मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आई कैन राइट सम टेक्स्ट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, microeconomics is the study of small individuals. You can give headings also. It is not necessary I am giving one paragraph or text. I am writing here is individuals, firms, industry, okay, etc. Fine. So if I want to make it bold, italic, underline, select it, make it bold, italic, underline, or whatsoever you want to make. If you want to make it center align, you can make it center align. Click on done. Now suppose you want this particular text to be displayed on the top. तो आप इसको यहाँ पे ये जो नेविगेशन के 4 एरो आप देख रहे हैं, आप इसको टॉप पे लेके जा सकते हैं. So now it is the top. Okay, so you can write paragraphs, you can give headings, you can give captions, या आप resources का भी एक अलग से सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं. नंबर 1 पे ऑडियो फाइल, नंबर 2 पे वीडियो फाइल, नंबर 3 पे PDF, ऐसा भी आप हेडिंग दे सकते हैं. Now third one is image. If you want to use any image, you can either upload an image or you can use from the library. Suppose I want to upload this image. ठीक है, ये इमेज है. सपोज मुझे एक ग्राफ बनाया है मैंने अपनी कॉपी में, और वो ग्राफ मुझे अब अपलोड करना है, या बच्चों को मैथमेटिक्स इक्वेशंस है या मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, उसका इमेज मुझे देना है, तो मैं वो यहाँ पे दे सकती हूँ. आई कैन एडिट इट ऑल्सो एंड आई कैन डिलीट इट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आपको कोई बुक मार्क है, राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी बुक मार्क विद अस, क्योंकि हमने किसी भी पेज का बुक मार्क नहीं बनाया है. ऑलराइट. उसके बाद अगर आपको PDF फाइल देनी है तो आप PDF पे क्लिक कीजिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू माय फोल्डर. सपोज ये मेरा स्टडी मटेरियल है यूनिट 1 का, पहले टॉपिक का. तो मैं यहाँ से जितनी PDF चाहूँ उतनी सिलेक्ट कर सकती हूँ. अभी मैंने ये PDF सिलेक्ट की. ये PDF अपलोड होगी. अब एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट को मेरा इमेज भी दिख रहा है टॉपिक के ऊपर, स्टूडेंट को मेरा आर्टिकल भी दिख रहा है गूगल सर्च इंजन वाला, स्टूडेंट को मेरा PDF भी दिखाई दे रहा है,
और साथ ही साथ अगर स्टूडेंट को मुझे 10 मिनट्स का वीडियो क्लिप जनरेट करके देना है, if I want to give 10 minutes video clip to student, I can make use of Flipgrid video. ये जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा है। या तो आप वीडियो YouTube से भी दे सकते हैं। तो YouTube पे अगर मैं क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एंटर प्रेस करती हूँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी यूट्यूब पे एट प्रेजेंट वीडियोस हैं उन सब की लिस्ट ये दे देगा मुझे। सो इट इज वेरी इजियर फॉर यू। आप यहाँ से जितने वीडियोस चाहें उनको सिलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन ऑल्सो, और यू कैन प्रेस द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट एज मेनी एज ऑप्शंस यू वांट, and finally click on add. What you have to do is just click on any of the particular resource type and finally click on done or add. Now if you want to delete whatever has been written here, you can click on edit simply, button पे click कर सकते हैं, and then finally you can delete the text and you can add your text also, like watch this video in next test I'll ask Q&A based on this video. All right, now a student is necessarily going to watch your video, so click on done because message is also highlighted here. So likewise, you want to change, you can change the text, you can delete the text. In fact, if you want to change this heading also, you can change this by clicking on edit. Just make a note, change introduction to microeconomics, click on done. So in this way you can add the resource of YouTube also. Now next option which we are going to see is, first of all I'll show you the simpler option and then I'll move to this particular option. Then next is Google Drive. Now you can sign in with Google using your Gmail ID, and from Google Drive also अगर आपका कोई मटेरियल आपका Google Drive पे है, अभी हम ऑलरेडी साइन इन हैं, तो मैं यहाँ से Google Drive से माइक्रो इकोनॉमिक्स निकालती हूँ। ऑलराइट, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेरा एक पीपीटी है, वो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पीपीटी को सिलेक्ट किया। नाउ नेक्स्ट इज वन ड्राइव। वन ड्राइव भी गूगल ड्राइव के समान ही काम करेगा आपका। दिस ऑप्शन यू एक्सप्लोर एट योर एंड। आई विल बी मूविंग टू फ्लिपग्रिड वीडियो। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विथ क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। फ्लिपग्रिड वीडियो पे आपको क्लिक करना है। ये एक नई चीज है जो आपको वेकलेट देता है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं देता है। So as soon as I'll click on Flipgrid video, now you can see my video also. All right. Now I have to, is my screen visible with my image? Yes, ma'am. Yes. Yes. Thank you so much. So what you can do is, सबसे पहले आपको क्या करना है? What you have to do is, you have to click on plus, you have to go to 9 dots, and then you have to click on Flipgrid. Now once you click on Flipgrid, what will happen is, a video dialog box will come. Now you have to click on this particular center circle if you want to add your video of 10 minutes. Flipgrid gives you 10 minutes video only. But if you want to add only audio, so you can click on options, you can click on mic only, and now you cannot see my video. Can you see my video now? Is it visible? No, you can't. All right. So it is up to us. What do we want? If we want only the video, we'll go to video. If we want audio, we can go for the audio option, or whatsoever option you want. So I'll do this exercise now. So I'm going to record one video of, let us say, 1 minute. So clicking on Flipgrid video, and finally clicking on center circle. 3, 2, 1, here I go. Good afternoon, this is Rinki Mulchandani from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research, Diksha Bhumi, Nagpur. Today I'm going to deal on the topic Wakelet. Wakelet is one such platform where you can engage with your students, where a student can pass on their resource material with you, and you can share your material with them at one place.
So now suppose my video timing has been done and my recording has been done. Now what I have to do next? तो अगर आपको पूरा 10 मिनट लेंथ का यूज करना है, यू कैन यूटिलाइज इट, बिकॉज सब्जेक्ट का वीडियो अगर आप अलग से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बना सकते हैं, तो आप टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पे भी बना के डायरेक्ट के डायरेक्ट यहीं पे भी आप एंटर कर सकते हैं. सो फाइनली क्लिक ऑन नेक्स्ट and here I go. Good afternoon. This is Rinki Mulchandani from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research, Diksha Bhumi, Nagpur. Again, click on next and again click on confirm. Okay. Your video is getting uploaded. This is very handy tool. We can do everything. So now we can see कि जो resources का platform है उसमें अब मेरा एक वीडियो भी ऐड हो जाएगा. It will take just 2 to 3 seconds in uploading it, depending on your net speed. Okay, now my video will also get displayed here. Okay, so can you all see the Flipgrid box along with my video capturing? Yes? Yes. Now the next option is Twitter, tweets. If you want to give any tweet, you want to share any news with your student, you can search for tweets also. दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिए. All right, if you want your student should know about Indian economy, type here Indian economy. I'm just giving example. You can use your own examples also. If you want anything particular to be read by the student, so you can select whatever tweets you want. Okay, and click on add. Now all the tweets will be added here at one place. Now after this, so now once you prepare all your resources in terms of video, if you want to add audio, let us do one audio also, podcast. So I'll click on this option. I'll click on Flipgrid. Now I'll go to options. I'll click on mic. And I will click on this circle. 3, 2, 1. Here I go. So what I did, I click on plus sign. I click on 9 dots. Then I click on Flipgrid. मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, 9 डॉट्स पे क्लिक किया, फ्लिपग्रिड पे क्लिक किया, फिर मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया, फिर उसमें से मैंने माइक ओनली चूज किया, फिर मैंने सेंटर की जो सर्कल है उस पे क्लिक किया ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं. एंड फाइनली नाउ आई एम रिकॉर्डिंग माय वॉइस. सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज. उसके बाद आपका ऑडियो हो जाता है रिकॉर्डिंग. आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर से कंफर्म पे क्लिक कीजिए. ये 3 बार आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट नेक्स्ट कंफर्म. उसके बाद आपका ऑडियो या वीडियो दोनों के प्रोसेस सेम है अपलोड होने के. तो ये आपका यहाँ पे अब ऑडियो आ जाएगा, ना कि एक वीडियो. So now this will be an audio for you, not a video. So in this way, you can make all the resources at one place. Now we have done with this particular section. Now we are going to see the important settings which are very important for us. And I think within 10 minutes, we will finish with this particular topic also. So what is to be done is, now next is, अगर आपको content का order change करना है, Your voice is this breaking, navigation, ma'am. if you want to make, okay, I don't think I have connected with a different net also. Is it still breaking? Now it's okay. Yeah. Just give me 1 minute. Okay, sorry. Yes, so I was telling changing the order of the content. If you want to change the content
order, you can make move up, this PDF to be moved down, or if you want this video to be moved on the top, so you can make this video on the top. So this is how you can change the order of your content. This is one particular setting. Second setting is with respect to view. View means किस तरीके से आपको अभी दिख रहा है. अभी आपको मीडिया व्यू दिख रहा है, वन बाय वन एक एक चीज आ रही है थोड़ा enlargement में. Now if you want to change the view, simply click on this particular option, change layout. Change layout given on right hand side. Now अब आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट व्यू कर सकते हैं. अब जैसे ही मैंने कॉम्पैक्ट व्यू किया, चीजें काफी कंप्रेस हो गई, चीजें काफी प्रिसाइज होगी, बहुत अच्छा लुक दे रही है. उसके बाद ग्रिड व्यू अगर आपको देना है, आपको विजुअल इंटरैक्टिव कंटेंट आपके इसमें दिखना चाहिए, आप ऐसा ग्रिड व्यू भी दे सकते हैं. अगर आपको मूड बोर्ड देना है, जैसे बोर्ड का डिजाइन करते हैं बच्चे, एक एक चीज एक एक क्लिप्स यहाँ पे रखते हैं, वैसे आप क्लिप अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं. बट suggested is always a compact view where everything can be seen very easily and he or she can read whatever you have given. So this is all about this particular setting, changing layout. Second setting, order content का आप content का आप order change करते हैं. Now this is very important for us. Privately रखना है, unlisted रखना है, public रखना है. Unlisted means जिनके साथ हम ये लिंक शेयर करेंगे वेकलेट की, सिर्फ वही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. पब्लिकली रखेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर पेज वेकलेट की कम्युनिटी पे आ जाएगा. जैसे यूट्यूब में आप अपना वीडियो पब्लिक रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, अनलिस्टेड रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से. ओके, सो मेक इट अनलिस्टेड ऑलवेज, इट इज एडवाइजेबल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज टू whom you want to invite, and if you want to change the background color, you can change the background image also. Sorry, not color, background image. Now the steps are same. I'm not going much on this particular background image because we can do this. हमें यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद if you want to add any background image, we can add any background image. या तो अपनी इमेज गैलरी में से भी कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये जो लाइब्रेरी दी है उसमें से भी. Now this is very important for us. Suppose in earlier case also I told you one thing कि अगर एक ही सब्जेक्ट दो टीचर शेयर कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनवाइट कर सकते हैं टीचर को भी. अब सेम चीज एप्लीकेबल होती है स्टूडेंट के लिए भी. अगर आपने यहाँ पे कोई भी रिसोर्स नहीं रखा है, सिर्फ आपने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया है और टेक्स्ट में लिखा है, ओके, प्लस साइन पे क्लिक किया है और टेक्स्ट में लिखा है असाइनमेंट नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. सिर्फ आपने यही चीज रखी है, बाकी की सारी चीजें अभी थोड़ी देर के लिए समझ जाइए कि नहीं है. ऐसे केस में भी आप अब स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ असाइनमेंट्स को शेयर करे, तो भी आपको उसको कंट्रीब्यूशन के लिए फैसिलिटी देनी होगी. दैट मीन्स यू हैव टू इनवाइट. तो इनवाइट का मतलब है जिसका आप कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर रिसोर्सेस में चाहते हैं, वो एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, एडिटिंग करे, उसी के लिए ही इनवाइट की फैसिलिटी है. अदरवाइज सिर्फ अगर आपको देखना है, ओके, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है, इसी में किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए. इफ यू डोंट वांट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, any other teacher or any students, then don't use this facility. All right, so let us see. Let me invite Preeti Dharmik madam. I'm inviting her, so to access this also, and that too she can make contribution of herself also. अगर उनको कोई PDF ऐड करनी है, वीडियो ऐड करना है, वो अपने मन से कोई भी कर सकते हैं. या तो यूजर ईमेल के थ्रू कर सकते हैं आप प्रीति धार्मिक मैम का. Preeti ma'am, can you please tell me your email ID, or shall I send it to myself only? That will be Preeti ma'am, if possible. Yes, ma'am. preetidharmik5@gmail.com. preetidharmik5@gmail.com. Okay. Now this is what it has been added. So if you want, Rinki Mulchandani@gmail.com. Add. So now 2 people are added here who can contribute in this particular resource. So send an invitation to them. You can send. Now similarly users, अगर आपके students हैं वो आपको assignment देना चाहते हैं,
तो अब ऐसे केस में हर एक बच्चे का ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप लिंक और कोड पे क्लिक कीजिएगा और ये जो लिंक है आप इसको कॉपी कर दीजिएगा और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको पेस्ट करना है। अभी मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। या तो स्टूडेंट क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है या ये कोड भी कर सकता है एग्जीक्यूट, तो उसके पास दोनों ऑप्शंस आपने देने हैं, या तो यूजर ईमेल या लिंक, इट्स अप टू यू। नाउ वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द स्टेप। ये सब हो जाने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। You have to click on done. Now you have done with your resource creation at one place. Now this is how your resource is going to be seen or looked by any other person. अब मैंने आपको बताए थे दो ऑप्शन। पहला है आप किसी का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, स्टूडेंट का चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, तो उनको इनवाइट करेंगे। अगर आप टीचर का चाहते हैं तो भी उनको इनवाइट करेंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप देखने का काम कर सकते हैं, उसमें कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। It means you cannot change my contents, but yes, you can see all my contents which are being given on Wakelet at one place. So I'll click on this share button. Okay, I'll click on this link I will be sharing with you. So I'll click on share button. I'll copy this particular link and now I'll be sharing with you all in the chat box. अब आप chat box में आपके पास Wakelet की लिंक आ गई है, ये देखने के लिए, आम जनता के लिए, ऑडियंस के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ बनाना है तो आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। गूगल क्लासरूम में इंटीग्रेट करना है तो गूगल क्लासरूम पे क्लिक कीजिए। आप इसको गूगल क्लासरूम में कौन सी क्लास में करना चाहते हैं वो क्लास आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसको आप किसके तौर पे करना चाहते हैं, मटेरियल के तौर पे या अनाउंसमेंट के तौर पे। तो सपोज मैं मटेरियल बोल रही हूँ, गो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नाम लिखिए लिंक 1 Wakelet resources, ओके, एंड फाइनली पोस्ट इट। अब ये आपकी क्लास में पोस्ट हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12:33 का मेरा पोस्ट है, रिंकी मूलचंदानी पोस्टेड अ न्यू वेकलेट रिसोर्स, इस पे क्लिक करना है। अब आपका स्टूडेंट डायरेक्टली इस गूगल क्लासरूम में आके इस लिंक को क्लिक करने वाला है, ही और शी इज गोइंग टू क्लिक एंड राइट नाउ माय अकाउंट इज ओपन सो यू कैन सी आर हेयर, बट जब वो यूजर या जब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट इसको ओपन करेगा तो उसको ये आइकन नहीं दिखेगा, डोंट यू वरी, ओके। So this will be how it will be displayed. But if you want to share in another mode also, you are having an option. Microsoft Team के साथ कर सकते हैं, tweet कर सकते हैं, Facebook पे दे सकते हैं. You can copy this link also, share it on WhatsApp group also. So this is how you can execute the resources at one place and share it, collaborate with other people by inviting them, share with them also. So once you are done with this, everything is finished now. So now you can log out from your own resources also by using this particular logout option. Now I will be telling you one interesting thing to you. I'll be telling one interesting thing to you. जब आप उसको export as PDF करते हैं, जब आप उसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं तो आपकी एक पीडीएफ फाइल जनरेट होती है। आप ये देख पा रहे हैं, पावर्ड बाय वेकलेट। कैन यू सी दिस, पावर्ड बाय वेकलेट? यस, यस और दिस इज अ पीडीएफ फाइल। अगर आप पीडीएफ फाइल भी बच्चों को देंगे तो वो बच्चा जहां कहीं पे भी क्लिक करेगा, सपोज उसने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया, वो डायरेक्टली उस आर्टिकल पे आ जाएगा। तो ये पीडीएफ फाइल भी उसके लिए बहुत ज्यादा आसान साबित हो रही है। इट मीन्स व्हाट कि आप इस पीडीएफ फाइल का भी यूज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पब्लिश करने का या अपने गूगल क्लासरूम में डालने का। अब सपोज उसने यूट्यूब के इस लिंक पे क्लिक किया तो डायरेक्टली उसको यूट्यूब का ये लिंक मिल जाएगा। ऑल राइट, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड नाउ मूविंग टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग,
Just I'll take your 2 minutes time and then we will finish with this particular topic also. Just give me only 2 minutes. I'll be going to Wakelet again. I'll log in it because पहली बार मैंने sign up किया था. अब मैं log in with Google कर रही हूँ. Okay. Now again the same step, Rinki Mulchandani. Now I want to show you कि आपका collection दिखता कैसे है. जो आपने अभी collection बनाया, ये आपका collection इस प्रकार से दिखेगा. ओके आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपकी वही सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं. आप कल चल के अगर कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं. फाइन. या तो फिर आप बैक बटन दबाइए. जैसे मैं अभी बैक बटन दबाई तो मैं वापस से कलेक्शंस पे आ गई. आपके पास ये भी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है. 3 डॉट्स को अगर आप क्लिक करते हैं एंड यू वांट टू शेयर and you want to export as PDF, so you can export it as PDF also. Export as PDF, export as PDF, and it will take 60 seconds maximum to export it in the PDF form. And finally, PDF file will also be ready with you. So now you can download this PDF. And now in my download folders, this PDF has come. I can see it's downloaded. And finally, whatever I have given, जो भी मैंने बच्चों को resources दिया है, उसकी एक फाइल भी मेरे लिए generate हो गई है. So can we see all this? Is it possible for us that we can make the things simpler? Yes. If you want to see कि कोई चीज कैसे दिखने वाली है, अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखा है आपने उसका ऑडियो भी अवेलेबल है. If you click on it, it will read your text also. Audio is also available. Okay. Fine. You can play also. And if you want to hear any audio also, you can hear it. Like ये वीडियो है रिंकी मुलचंदानी का, ये भी आप वीडियो देख सकते हैं. So this is how the essence of Wakelet has come into us in this particular period of time in COVID pandemic. So I think we have done with both the sessions. Yeah, one more thing which was remaining for you all, that is spaces कैसे create करते हैं. शायद ये प्रश्न आप लोगों के पास आया होगा कि हमने कलेक्शन तो क्रिएट कर लिया, कलेक्शन और स्पेस में फर्क क्या है, वो जस्ट मैं आपको 1 मिनट में बता देती हूँ. लेट दिस पर्टिकुलर वर्क गेट सेव्ड. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, मैं लॉग आउट करती हूँ इसमें से एंड देन अगेन गेटिंग लॉगिन इन. Just give me 1 minute. I'll tell you one big difference between spaces and this particular thing. Okay. Now, whenever you want to create or join any space, you have to click on this particular plus sign. अब इस प्लस साइन को क्लिक कीजिए. अब आपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का नाम दीजिए जिसमें आप सारे रिसोर्सेस रखने वाले हैं. सपोज आप फाइनेंशियल अकाउंट का कुछ करने वाले हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंट्स दीजिए. आप कंप्यूटर साइंस का कुछ करने वाले हैं लाइक सी प्रोग्रामिंग or any other thing, you create an space. You have created now space for this. Now creating a space means now this itself will be treated as your folders. Now in this folder you can keep whatever collection you want. All right. And जब कभी भी आपको इस स्पेस को डिलीट करना है, आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं इस स्पेस को जब कभी भी आपको डिलीट करना है. अगर आपको लगता है कि ये फोल्डर का काम अब हो गया है, अब बच्चों ने ये फोल्डर नहीं देखना चाहिए, यू कैन इमीडिएटली डिलीट इट व्हेनेवर द वर्क इज बीइंग डन. बट अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कि पहला मेरा फोल्डर इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स में मैंने ये कलेक्शन डाला है. सी प्रोग्रामिंग का है, सी प्रोग्रामिंग में मैं कोई और कलेक्शन डाल रही हूँ. ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सेम 2 के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, EWD सब्जेक्ट है,
Then we are having the programming in C++ subject. We are having English also. We are having principles of management also. So all the 4 subjects will be created as 4 spaces. And in that particular space, every teacher will go with the same unique email ID, and they can post all their resources at one place. So it becomes handy for all 4 teachers. वो sem2 के सारे टीचर्स के लिए एक कॉमन आईडी रहेगा sem2@gmail.com. हर बार वो sem2 से लॉग इन करेंगे और अपने अपने स्पेस एरिया में जाके अपना अपना मटेरियल, अपना अपना रिसोर्सेज वहां पे शेयर करेंगे. तो ये एक और बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी कि वो जब चाहे किसी भी रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर सकते. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. यस प्रीति मैम. यस, थैंक यू रिंकी मैडम. किसी को कुछ पूछना है ये सेकंड सॉफ्टवेयर या तो टूल के बारे में? इफ एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग, प्लीज आस्क. Madam, I have a question. After यस सर. yes, so after exporting the file in the form of PDF, so the video which hello. Can you share the assignments video? भारती मॅडम एक मिनिट थांबाल. विश्वास सर विचारतात आहे. Okay. Madam, after exporting the file. Just a minute. My voice is breaking. Hello. Hello. Yes, Saikat sir, please ask. Yes. So after exporting the file in the form of PDF, so the video which you have recorded by using the inbuilt video recorder, is that also can be played from the PDF itself after clicking, like those YouTube videos? रिंकी मैडम, एक मिनिट सर. रिंकी मैडम, am I audible? Why she has muted? हेलो रिंकी मैडम. हेलो. यस. यस मैम. आपने क्वेश्चन सुना सर ने जो पूछा? नहीं मैम. Okay, एक I'll बार फिर से repeat. बता देंगे Okay. Yes, yes. I'll क्योंकि repeat. शायद यहाँ से बंद हो गया था. ओके, ठीक है. Okay, हाँ, madam, बता I just दीजिए, want to please. ask, I just want to ask, after exporting the file in the form of PDF, so you were clicking on those videos link and the videos were playing directly. So will that video which you have recorded using the application, inbuilt application, will that video also be played by clicking the link? Sir, yes, let us check. Okay. I'll be going to my PDF. Just give me 1 minute. Yes, sir. Can you is Yes, sir. is my Yes, video ma'am. accessible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yes. So I hope your question is your question is now. This is Rinki Yes, yes. Mulchandani from Dr. Yes. So, sir, I want to say one thing to you is that Yes. see, we are just doing the embedding of resources. We are just
not creating the original resource at our own end. Like local Yes, computer yes. से अगर मैं कोई फाइल वीडियो बनाती हूँ और मैं बोल रही हूँ कि उसका मैं पीडीएफ बना के भेजूं, तो वो नहीं होगा, बिकॉज पाथ चेंज हो जाएगा. यहाँ पे क्लाउड में सारी चीजें अवेलेबल है ना. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप जो भी देंगे, जो भी रिसोर्स Okay. देंगे, ऑडियो देना चाहते हैं, सब कुछ एक्सेसिबल है. बिकॉज Okay, हमारा ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वेकलेट का इनबिल्ट प्लेटफॉर्म है और उन्होंने इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है कि आप अगर चाहें तो आप 10 मिनट का लेक्चर वीडियो भी बना के स्टूडेंट को दे सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वाइडली यूज्ड बाय अदर नेशंस अ लॉट इंस्टेड ऑफ इंडिया. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, sir. Everything is accessible. You can explore at your end also. And if in case any technical issue will come, we will definitely look after that also. Okay. Because why I have opened my file once and why I have downloaded is because I want to show you that really it is accessing or not. So that doubt should get clear na practically. Yes. 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 Anything is accessible. भारती मैडम. Hello, Yes. madam. My question is that can we make a quiz through this app? This is my first question. And second Yes. question is whatever the assignments, PDF files or videos, we can share it to the Google site also, Moodle site also. Our Moodle Yes, site. ma'am, you can do Yeah. one thing. See, कलेक्शन में जब मैंने आपको बताया था कलेक्शन में, ऑल राइट, Okay. जब हम कलेक्शन बना रहे थे तब यहाँ पे प्लस साइन के बाद सपोज आप बोल रहे हैं गूगल फॉर्म आपको यूज करना है, तो गूगल फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे बनेगा तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो एप्स का फाइल है, ये जो एप्स 9 डॉट्स हैं, इसमें एक गूगल ड्राइव करके भी आपको दिया है इंटीग्रेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए. अगर इस गूगल ड्राइव में सपोज आपने कोई टेस्ट पेपर रखा है, ठीक है, लेट अस से मैंने कोई टेस्ट रखा है और कोई तो भी फॉर्म होगा ही जरूर मेरे ड्राइव में, कोई भी एक XYZ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. सपोज ये मेरे पास एक फॉर्म है, ऑलराइट, यूनिट टेस्ट. ये यूनिट टेस्ट का फॉर्म मैंने अगर बच्चों को देना है तो मैं डायरेक्ट ड्राइव की लिंक से दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्विज जनरेट नहीं कर सकती. मैं इसको दूसरे माध्यम से ला सकती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ऑनलाइन क्विज बिकॉज वो फीचर कहीं पे भी कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है. दैट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन दिस राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. बट हाँ, गूगल ड्राइव में अगर आपने गूगल फॉर्म बना के रखा है या आपने टेस्ट मोज में बना के रखा है, आप टेस्ट मोज की लिंक यहाँ पे पेस्ट We कीजिए can ना, visit जो मैंने आपको also. टेस्ट मोज, हाँ आपको जो मैंने टेस्ट मोज वाली साइट वाली लिंक दी थी, सपोज मेरा ये पर्टिकुलर पेपर है, ये पेपर की जो लिंक है यहाँ पे, ओके, कॉपी किया मैंने और मैं वेकलेट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ. पेस्ट करूंगी तो बच्चों के पास टेस्ट आ जाएगा टेस्ट मोज के नाम से. तो आप लिंक्स के थ्रू दे सकते हैं, बट डायरेक्ट जनरेशन इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट अलाउ अस. And second question was related to what, ma'am? Second question, pardon. My second question is related to Moodle. We can share it to the Moodle You site. can do one thing with PDF or Moodle. Suppose आपने ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए हैं, मैंने आप सभी से अभी थोड़ी देर पहले ये शेयर करके बताया था, ये शेयर वाला ऑप्शन है, ये जो लिंक आपको देखने को मिल रही है, ओके, आई कैन कॉपी दिस We can paste to the and Moodle I can site. share with you all. It can be pasted in Moodle side also, and right now I have pasted to your chat box also. You can also see this particular thing. Yes, madam. So everything is at our own requirements, what we want to do and how we want to do. But this is really a good platform. I'm using it and really it is helping me a lot, because जो assignments Google Drive में पूरे भर जाते थे, गूगल ड्राइव से अगर हम असाइनमेंट बच्चों से मंगवाते भी हैं तो भी हमारा गूगल का स्टोरेज, जीमेल का स्टोरेज तो हमारा भर ही रहा है ना, तो यहाँ पे सब कुछ क्लाउड में ही रहेगा अवेलेबल. बट हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपके बच्चे थोड़े मिस्चीवियस रहे तो हो सकता है कंट्रीब्यूट करते समय अगर आपने उनको एडिट ऑप्शन दिया है तो कुछ गलत ना करें, बट पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इट्स ऑल अप टू अस. वैसे होता नहीं है ऐसा, मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा कभी, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है.
Okay, thank you, madam. So friends, now any more question? Otherwise, we will take break of 10 minutes and we'll start with our Ma'am. next session. Ma'am, if we download anything in the text form, can it be can we do some alteration in that? Because usually PDF we don't do any alteration, right? No, ma'am. Once the PDF is made, we cannot do alterations. But yes, you can do one thing. You can convert that PDF into text and then you can make the alteration. But that feature I have not explored yet. From Wakelet side, we cannot edit here. You can edit in this particular system. यहाँ पे आके आप कुछ भी edit करेंगे और फिर PDF बनाएंगे तो वो फिर change PDF बन जाएगा. But once you make it as a PDF, like suppose this PDF is with me right now. So it is already given to me by the Wakelet. So I cannot make any manipulations or changes here. Is it downloadable or paid Yes, software? it is downloadable to you. You can download it, you can convert it also. No issues. You can highlight anything also in No, that ma'am. PDF. I think she is asking Wakelet. It is downloadable. Madam, what is your question? No. Wakelet is not downloadable. Wakelet is a site and it's a website. You need not to download any software. What you have to do is you have to just type wakelet.com. And the moment you will type wakelet.com, you will register with your email ID. You will come to this interface and you have to just go on creating your collection by clicking on plus sign. That's it. Thank you, ma'am. Yeah, you don't require any plugin, you don't require any add-on, you don't require any software. It is available on cloud. It is available as a website for you. You can freely use it and unlimited collections you can give. Thank you. Okay, ma'am. Yes. सो फ्रेंड्स 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और जल्दी वापस आइए क्योंकि अपना दूसरा सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है. सो रिंकी मैडम, वी विल टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. Yes, ma'am, definitely. मैडम 2 बजे तक हो जाएगा ना नेक्स्ट Yes, ma'am. I'll try my level best because peer deck is very simple for them. Yes. And I am already Madam, having actually my Google PPT. slide part was covered by one of the resource persons. So you just give you brief idea. No, I and will then- not jump to the Google slide Yes, part. yes, What I okay. will do is, Okay, yes, ma'am. I am assuming that Google slide, if it has been done, then I need not to go for importing the slides to Google Slides, right? Yes, ma'am. Yeah, so that part I will skip. वो part मैं छोड़ दूंगी. उसके आगे का जो continuation part है, I'll do that. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो फ्रेंड 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और जल्दी वापस आइए. अपना अगले का सेशन स्टार्ट करते हैं. फिर मीटिंग को लीव मत करिए.